Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 2, General Science Class 8. In our previous lecture, we had an introduction about coordination and organization, and we tried to correlate it with one fundamental system of human body called as nervous system. तो पिछले लेक्चर में मैं ये कह रहा हूँ कि हमने डिफाइन किया था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एंड हाउ नर्वस सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू डू ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरी आउट कोऑर्डिनेशन. एंड नाउ इन दिस सेकंड लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग human nervous system. So in this second lecture or today's lecture we will be studying human nervous system. Human nervous system हम पहले भी बात कर चुके हैं, is one of many systems present in human body, and today we will be looking how it is made of or what are its major parts and how its different parts function for performing coordination and regulation in our body. Human nervous system consists of two parts, CNS and PNS. CNS and PNS, these are two major parts of human nervous system, and I will try to elaborate what part of our nervous system are called as central or CNS, central nervous system, and what parts of our nervous system are called as PNS. I will be drawing here a generalized diagram. Let us suppose a human being is standing in front of us. And this is a general profile view from one side. These are two major constituents of our central nervous system or CNS. First is called as brain, which is enclosed in cranium or skull, and second is called as spinal cord, which is enclosed in vertebral column. And then we have some nerves which originate from brain and they connect different organs of our body with the brain. Similarly, we have some other nerves which connect our spinal cord with different organs of our body. These two parts, major parts of CNS, are called as CNS. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो कि क्रेनियम के अंदर इनक्लोज्ड है
और स्पाइनल कार्ड जो कि वर्टेब्रल कॉलम की हालोनेस के अंदर मौजूद है, यानी दिमाग और ये स्पाइनल कार्ड जिसे हम हराम मगज़ कहते हैं, ये दोनों हमारे CNS के मेजर पार्ट्स हैं। और यहाँ जो मैंने नर्व्स ड्रा की हैं, द नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड दे कनेक्ट टू आवर आई or to our ear, these are called as cranial nerves, and nerves which originate from our spinal cord and connect to our different organs or different organs of our body. For example, here I have shown that one spinal nerve have a connection with our kidney. K stands for kidney here. These nerves, these spinal nerves and these cranial nerves, they collectively are called as PNS or peripheral nervous system. But our major area of discussion today is brain and spinal cord. I mean, we will be studying central nervous system, and in inshallah next lecture, in lecture number 3, we will be studying PNS or peripheral nervous system. तो आज हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसको स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ब्रेकअप आई थिंक इन दिस लेक्चर नंबर 3 वी विल बी studying brain and only brain, and spinal cord will be the topic of our next lecture. Human brain is present in our cranium or skull, so it is well protected, and our spinal cord is present in the hollowness of our vertebral column, so it is protected as well. Beside protection provided by the bones, we have 3 connective tissue layers surrounding or wrapping around our brain and spinal cord, which are called as meninges. Overall, bony structure besides these meninges, they keep our brain and spinal cord well protected, and minor injuries or jolts cannot shake our brain nor can damage our spinal cord. However, some major injuries which can intrude into bony structures or which can rupture our meninges, they can be lethal for our brain, or they can be very fatal or damaging for our spinal cord. Inshallah, we will be studying spinal cord in the next lecture. Today I will be restricted to brain, its major parts, and some of its major functions. Human brain can be divided into 3 major areas for our understanding. Although it is one whole structure, but we can divide it into 3 anatomical areas, with one called as forebrain, second called as midbrain, and third called as hindbrain. And this actually make its understanding easier for us. Human forebrain can be further divided into human forebrain can be further divided into cerebrum, thalamus, and hypothalamus. These are 3 major anatomical
पार्ट्स ऑफ आवर फोर ब्रेन, और इन तीनों में और बाकी दोनों एरिया से भी जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम ऑलमोस्ट consists of 60% part of our all brain. Cerebrum is divided into two half balls called as cerebral hemispheres, and these two cerebral hemispheres are present at very front of our skull, at very front of our brain. Cerebral hemispheres का के जो फंक्शंस हैं ना वो मतलब ऑलमोस्ट इनकाउंटेबल हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए जो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ अहम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो ये परफॉर्म करता है, वी विल बी numbering them all or counting them one by one. First is vision. Second is hearing, etc. It means that all our five major senses, vision, hearing, smell, touch, taste, ये सारी सेंसेस जो है ना ये फोर ब्रेन के उस पार्ट के पास हैं जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, और जिसके दो हाफ पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाने वाले. तो ये सारे जो फाइव सेंसेस हैं ये इनके कंट्रोल में हैं. नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन that these five senses are not present only in humans, they are present in other animals as well. But there are two other functions which are performed by our cerebral hemispheres or our cerebrum, and they probably are present only in us, and they are unique to the humans, and they distinguish us from other creatures of God. One is intelligence, and second is memory, and third may be called as reasoning. These three features have made us able to write, they have made us to transfer knowledge from generation to generation. So probably these three characteristics which I have just written over here, they are unique to the humans, and they are not found in the brain or in the cerebral cortex or the cerebrum of other living beings. और यही हमें ह्यूमन बनाते हैं, और अल्लाह ने जब हमें अपना वाइसराय बनाकर दुनिया में भेजा तो हमें ये चीज़ें वदियत करके इनके अनायत से हमें दूसरी मखलूक़ात पे सबकत अता की. सेरिब्रम के बाद जो दूसरा बड़ा मेजर एरिया है वो है थैलेमस. और थैलेमस जो है ना ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद है. थैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है, ज़ाहिर है दूसरा, और सेरिब्रम के नीचे मौजूद है. और ये actually it behaves as a connective link or something which can behave like a bridge between lower parts of the brain like midbrain and hindbrain and front brain like cerebrum. तो मैं ये कह रहा हूँ कि थैलेमस इंफॉर्मेशन को जो कि पीछे से आती है ब्रेन के पीछे वाले एरिया से उनको आगे भेजता है, और आगे वाली इंफॉर्मेशन को ब्रेन के जो हाइंड साइड पे एरियाज हैं उनमें ट्रांसफ़र करता है. लेकिन ये सारी कहानी नहीं है. एक्चुअली थैलेमस हैव लॉट ऑफ फंक्शंस, बट आई हैव टू स्टिक टू द आवर cerebus, and I cannot mention functions which are not involved, which are not present in our syllabus.
So we have to be content by saying that it behaves as a bridge. And then we have a third part of our forebrain which is called as hypothalamus. Hypothalamus is present at the anterior or at the front side of thalamus, and hypothalamus have multiple functions. It controls our thirst, it controls our hunger, it controls our heartbeat, it controls our blood pressure, it controls water content in our body, it controls temperature of our body, and it produces lot of hormones as well. तो लिहाजा मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके लातादाद, और इंसानी जिस्म के कंट्रोल में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी रेगुलेशन में, उसकी ग्रोथ में, उसकी डे टू डे फंक्शंस में इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बड़ी प्रोफाउंड किस्म की है, और इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। तो ये था हमारा फोर ब्रेन के बाद हमारा जो है ना वो एक और एरिया है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। इंसान का जो मिड ब्रेन है ना, ये बुनियादी तौर पे एक ट्रैक्ट ऑफ न्यूरॉन्स है। I am writing exactly the same words which have been used in our text, a tract, और वहाँ तो न्यूरॉन्स भी मिसाल लिखा, लेकिन ये मैंने इजाफा किया अपनी तरफ से। तो ए ट्रैक्ट ऑफ न्यूरॉन्स मीन कि इट इज़ समथिंग, अ बैंड ऑफ न्यूरॉन्स, a tract like structure which connects hind parts of the brain with the forebrain. So it also behaves like a bridge, and it behaves as a relay center. The information which it receives from the front part of the brain, it conveys to the back part of the brain or the hind brain, and information which it receives from hind brain, it conveys to the forebrain. यहाँ एक लफ्ज़ अभी मैंने बोला इंफॉर्मेशन, तो बायोलॉजी की ज़बान में ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन चलती है ना उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हमारी किताब के अंदर, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो मैं भी यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की बजाय इसके बारे में इतना कहूँगा कि इम्पल्स एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, या हमारे ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन अगर बॉडी की तरफ आनी है, कोई अहकामात हमारे पाँव की तरफ जाने हैं, हमारी आँखों की तरफ जाने हैं, या आँखों से कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन की तरफ आनी है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में होती है जिसे इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी हिस्सा है हमारे ब्रेन का विच इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। Human hindbrain can be divided into three major areas. First is cerebellum, second is pons, and third is medulla oblongata. सेरिबेलम जो है ना ये हमारे हाइंड ब्रेन का, हमारे बैक साइड वाले ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस कायम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ओरिएंटेशन है स्पेस में, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मसलन में आई एम स्टैंडिंग हियर इरेक्ट, तो दिस अंडरस्टैंडिंग कि मैं लेटा हुआ नहीं हूँ या मैं अपसाइड डाउन टर्न ओवर नहीं हुआ, इस अंडरस्टैंडिंग को सेरिबेलम पैदा करता है। और यहाँ मेरे जहन में आ रहा है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो ज़रूरी तो नहीं है ये, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, बट टू मेक आवर लेक्चर अ बिट इंटरेस्टिंग, सेरिबेलम जो है ना ये फिश में जो कि पानी में तैरती है और बर्ड में जो कि हवा में तैरता है,
दोनों का अगर कंपेयर करें तो पानी में तैरना, पानी चूँकि थिक मीडियम है, आसान है, इसलिए फिश का सेरिबेलम कम डेवलप है और बर्ड्स का सेरिबेलम ज़्यादा डेवलप है। और हमारा, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा समवेयर इन बिटवीन है, यानी वी हैव cerebellum which is more developed than fish but less than developed than aerial creatures, as to balance in the air is difficult than to keep yourself balanced and standing at the land. Then we have second part of hindbrain which is called as pons. Pons जो है ना, ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है और ये ब्रीदिंग रेट के साथ इसका कुछ तल्लक है। ज़्यादा फंक्शन इसके हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। एक तीसरा जो है ना हमारे हाइंड का तीसरा और फाइनल पार्ट वो है मेडल्ला ओब्लांगेटा। मेडल्ला जो है ना ये लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का भी और हमारे हाइंड ब्रेन का बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा है। एंड देन इट टेपर्स डाउन and changes into spinal cord and continues down into our vertebral column। तो ब्रेन यहाँ पे एक्चुअली ख़त्म हो जाता है। तो मेडल्ला ओब्लांगेटा जो है ना इसकी कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इनवॉलंटरी हैं और जैसा कि हार्ट बीट में कुछ हेल्प करता है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल व्यू अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Inshallah in the next lecture we will be studying what the PNS is. I mean कि what is the peripheral nervous system, यानी जो cranial nerves और spinal nerves हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मुझे करनी हैं and they are not particularly irrelevant as they have been mentioned in our book. First is the corpus callosum. Corpus callosum is a band of nervous tissue or neurons. Neurons का एक बैंड है जो कि हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। मैं यहाँ ये मेंशन करूँगा, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट लेफ्ट पार्ट या और द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारा जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसके कंट्रोल में हमारी राइट वाली आंख है और जो राइट साइड वाला हेमिस्फीयर है उसके कंट्रोल में हमारी लेफ्ट साइड वाली आंख है। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्टेड रखने के लिए और दोनों में कोहेरेंस और तालमेल पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये जो है ना कार्पस कैलोसम रखा है इंसान की बॉडी में। इंसान ने खुद तो नहीं किया, लेकिन समटाइम इट हैपन्स दैट ड्यू टू एक्सीडेंट्स सम इंजरीज अकर टू कार्पस कैलोसम एंड इट इज ब्रोकन डाउन। और ये ऐसी एक बड़ी मेडिकल सिचुएशन होती है जो कि उस आदमी के लिए बड़ी ख़तरनाक है जो 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 इस ट्रामा में से गुजरा होता है। एक्चुअली आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कार्पस कैलोसम ह्यूमन बॉडी फील्स अ स्प्लिट इन इट्स मूव, यानी ये देखा गया कि जिन लोगों में कार्पस कैलोसम एक्सीडेंटली टूट गया था उनमें राइट हाथ जब चाय उठाता था तो लेफ्ट हैंड जो है चाय को छीन के फेंक देता था और राइट साइड वाला हाथ न्यूज़पेपर उठाता था पढ़ने के लिए तो लेफ्ट वाला उसको छीन के फेंक देता था। यानी मूड फीलिंग्स स्प्लिट हो जाती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी जो है ना वो दोहरेपन का डुअलिज्म का शिकार हो जाती है कि कार्पस कैलोसम टूट जाए। और एनिमल्स लाइक कैट्स और मंकीज़ वगैरह में मतलब सर्जिकली इसको एक्सरसाइज करके इसको काट के देखा भी गया है और ये बात जो इंसानी पेशेंट्स में फील की गई है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। एक दूसरा चीज़ जो हमने समझनी है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के जो हमारे सिलेबस के मुताबिक फंक्शंस हैं वो अननोन है और आपने याद रखने की ये ग्लैंड है जो कि हमारे थैलेमस के साथ अटैच होता है और हमारे हाइपोथैलेमस के साथ भी एक ग्लैंड अटैच है
जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। ये ग्लैंड जो है ना, ये बहुत सारे हार्मोन्स पैदा करता है और बॉडी की ओवरऑल वेलबीइंग, यानी उसके टेम्परेचर रेगुलेशन में, उसकी ग्रोथ में, उसके हार्ट बीट में, उसकी स्ट्रेस को के साथ मुकाबला करने की शक्ति में रेगुलेट करता है बॉडी को, और रोज़मर्रा की मुख्तलिफ अवामल और काम जो हैं उनमें इसका काफ़ी अमल दखल है। और ये यहाँ पे मेरा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। मैं जल्दी से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ 2-3 बातें ताकि बच्चों के जहन में बैठ सके। आज हमने पढ़ा है अपने दूसरे लेक्चर में CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। इसी तरह से जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके भी हमने 3 हिस्से अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं हम। एक सेरिबेलम है, एक दूसरा पोन्स है और तीसरा मेडला है। और अब आखिर पे एक बात जो वालों में से मिस होगी वो ये है कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये जो ब्रेन स्टेम है ना, ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, हमारा मिड ब्रेन, हमारे पोन्स और मेडला। इन तीनों चीज़ों को मिला के ब्रेन स्टेम कहते हैं। लेकिन इसके जो फंक्शन हैं और ये कैसे एक मिल के एक एज ए 1 यूनिट काम करते हैं, ये यहाँ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और हम इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के लिए वी विल बी मीटिंग सून। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।